Hey folks, Saksham this side from Ace IPM. I'm Amritsar has released the form for its IPM program. In this video, let's just go through the eligibility criteria and fill the form together. So without any further ado, let's begin. So first of all, this IPM program is different than others. Usually an IPM is a combination of BA or a BBA with an MBA degree. In this particular case, however, it is a Bachelor of Science specializing in quantitative finance and economics and an MBA degree. So slightly different, from that perspective. Other than that, there are certain things that you need to keep in mind before you fill this form in terms of the dates as well as the eligibility criteria. First of all, the documents which are required for you to fill the form are mentioned here. You can go through it right now by pausing the video, or we'll anyway fill the form. तो वहाँ पर ये documents required होंगे, so that is there. In terms of the important dates, first of all, what you need to understand is that IIM अमृतसर में एडमिशन लेने के लिए आपको IP मैट इंदौर का स्कोर लगेगा. So in that case, you first fill the form for IP मैट इंदौर, the deadline of which is March 14th. Once you have filled that form is when you also fill the form of IIM अमृतसर if in case you want to apply here. Just because you fill the form of IP मैट इंदौर does not automatically make you eligible for every other college which is also accepting IP मैट इंदौर score. It only makes you eligible for IIM Indore. For every other college, you fill the form separately, and that is the case with IIM Amritsar as well. So you first fill the form for IP MAT Indore. After that, you come to IIM Amritsar's website and fill the form for the same. The deadline of which is March 31st, and then you give IP MAT Indore on May 4th, 2026. एंड अकॉर्डिंगली इंटरव्यू कॉल्स आएंगे. इंदौर वाले अलग क्राइटेरिया से कॉल करेंगे, अमृतसर वाले अलग क्राइटेरिया से कॉल करेंगे, रांची वाले अलग क्राइटेरिया से कॉल करेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर. So that is how things are going to be like. Now, in terms of the eligibility criteria, what you need to understand is you need to be maximum of 20 years as of 1st July 2026. That essentially means you need to be born on or after 1st July 2006. That is the age criteria for every category. In terms of 10th and 12th, you need to have passed both with a minimum 60%. And if in case you come from SC, ST or PWD category, that becomes 55% for you. In terms of the qualifying exam, it also mentions that you need to pass your class 12th either in 2025 or you should be appearing in 2026. So that essentially means that only 1 year drop is allowed. Nothing more than that is allowed. So you have to pass your class 12th either in 2025 or 2026. At the same time, it also mentions that having math or applied math as a subject in your 12th is compulsory. You cannot apply for this particular program if in case you're a non-math student, which also makes sense because this program, as you know, in its existence is also very math heavy. It's very quant heavy. So having that background is essential for this particular program. So that is there. Now, in terms of 60% and 55% in your 12th, as well as 10th, they haven't really mentioned if you have to calculate the aggregate of all subjects or as per your board's regulation, because there is no mention of that. I would say you can go for the board's regulation, but to be on a safer side, if you take the aggregate of all, if there isn't much difference in your, as per board's regulation and aggregate of all, then you go for aggregate of all. Why? Because sometimes people don't actually know what the board regulation is. For example, in the case of CBSE or let's say ICSE, the passing criteria is that you take the score of English and best of 3 subjects. But that is the passing criteria. That is not the criteria for you to calculate your percentage. Percentage के लिए anyway you have to consider all the subjects in the case of CBSE as well as in the case of ICSE. Where you have a difference is in the case of Maharashtra board, जहाँ पर चाहे हमने 6 सब्जेक्ट्स भी करे हों, आपकी मार्कशीट के अंदर ही आपकी एग्रीगेट परसेंटेज लिखी होती है एंड दैट इज बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. सो अदर देन दैट, अनलेस एंड अनटिल आपके मार्कशीट के अंदर ही कोई परसेंटेज मेंशन है, आप वो मेंशन कर दें. बट अगर आपकी मार्कशीट में परसेंटेज नहीं मेंशन है, आपका बोर्ड परसेंटेज मेंशन नहीं करता है, देन इट मेक सेंस कि उस पर्टिकुलर मार्कशीट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स अपेयर कर रहे हैं, आप सबका एग्रीगेट लेके चलें. So that is there in terms of the 10th and 12th marks. And as I mentioned earlier, you have to, give the exam of IPMAT Indore, IPMAT 2026. And basis of that, you will be eligible for IIM Amritsar's further admission process. In terms of further process, this is how it will work. Your shortlist will come basis of the ATS score that they'll calculate. पहले आप IP मैट इंदौर का फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप IIM अमृतसर का फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप IP मैट इंदौर अपेयर करेंगे. उसके बेसिस पे IIM अमृतसर, IIM इंदौर, रांची सब अपने अलग अलग कट ऑफ्स निकालेंगे. इन द केस ऑफ अमृतसर, दिस इज हाउ द कट ऑफ विल बी कमिंग. दैट इज they will give 30% weightage each to both the quant section, 40% to verbal ability, and that is how they'll calculate the ATS
ATS के बारे में जानना है तो IIM इंदौर भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बट इट इज़ 25, 25 एंड 50, तो आप उसकी वीडियो मेरी अलग से जाके देख सकते हैं, बट दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू फॉलो। ऑल्दो दे हैवंट मेंशन्ड ओवर हियर दैट इफ देयर इज एनी सेक्शनल कट ऑफ और नॉट, सो आई वुड अज्यूम कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होएगा, बट बिकॉज ATS कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम स्कोर लगता है, विच इज़ यूजली द sectional cutoff or the least sectional cutoff of all the categories. अगर वो नहीं है, in the absence of that, it ideally becomes 1. But again, this is something that only IIM Amritsar can confirm. But आपका ATS कैलकुलेट होगा, ATS के बेसिस पे आपको कॉल आएगा, उस कॉल के बेसिस पे आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, एंड फाइनल जो एडमिशन होएगा उसका क्राइटेरिया ये है दैट 70% वेटेज गोज टू योर एंट्रेंस, 25% वेटेज गोज टू योर इंटरव्यू, एंड देन 5% वेटेज गोज टू योर जेंडर डाइवर्सिटी, एंड द कॉम्पोजिट स्कोर देन बिकम्स द सम टोटल ऑफ ऑल, एंड दैट इज हाउ यू नो योर final list is prepared, and basis of that admission is granted. Of course, reservation norms will apply over here, as is the case with every other IIM. So that is there in terms of the eligibility criteria. Now we can move further to the admission process itself, the form itself. So first of all, you register here. आपको लिंक नीचे भी मिल जाएगा, अदरवाइज इस पेज के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एडमिशन फॉर्म फॉर डोमेस्टिक कैंडिडेट्स। हम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स की यहाँ बात नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ यू रजिस्टर। यू एंटर योर नेशनैलिटी विच इज़ इंडियन, योर मोबाइल नंबर, अगेन मोबाइल ईमेल आप वो वाला डालें जो आप रेगुलरली चेक करते हैं, योर नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो भी डाल दीजिए, एज पर योर 10th मार्कशीट डालिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ विच हैज़ टू बी लेटर देन 1 जुलाई 2006, इससे पहले नहीं हो सकता, मेल, कैटेगरी, अगर आप यहाँ कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, द कोर्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, योर ईमेल, द पासवर्ड दैट यू वांट टू चूज, द कैप्चा, एंड यू क्लिक ऑन रजिस्टर। वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर यू विल हैव टू वेरीफाई योर ईमेल, उसके लिए ईमेल आ जाएगा। एक बार वो ईमेल आपने वेरीफाई कर लिया तो आप लॉग इन कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। इट मेंशंस कि आपको सेम ईमेल यूज़ करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, be it at the time of filling the form or making the payment or for any further correspondence with the IPM office. उसमें आपका फॉर्म जो होएगा, आप प्रोग्राम डिटेल्स में जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म डिटेल्स खुल जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पहले से दे चुके थे। आपको परमानेंट एड्रेस डालना है जो आपके आधार या फिर किसी डॉक्यूमेंट में होता है, वो डालिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड वो एड्रेस कॉपी हो जाएगा। फिर आपको पेरेंट्स पर्सनल डिटेल्स डालनी है। यू कुड आइदर एंटर योर मदर्स डिटेल्स हेयर और योर फादर्स इज वेल। तो यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एंटरिंग माय फादर्स डिटेल्स, सो द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगेन आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनाएं तो बेटर रहेगा, एंड आइडियल केस में तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स में सिमिलर नेम्स होने चाहिए। सो दैट इज़ देयर। जेंडर डाल दिया, नेशनैलिटी डाल दी, ईमेल ऑफ योर फादर, मोबाइल नंबर ऑफ योर फादर, अगेन समथिंग दैट दे आल्सो रेगुलरली चेक। द परमानेंट एड्रेस आइडियली सेम ही होएगा आपका और आपके पेरेंट्स का, और अगर कम्युनिकेशन भी सेम है देन यू क्लिक ऑन दिस एंड वो कॉपी हो जाएगा। अगर 12th आपने पास करा है तो पास क्लिक करेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग क्लिक करेंगे। अगर पास क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अगर आप अपेयरिंग क्लिक करेंगे तो ये दोनों में खुद अपेयरिंग फिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स क्या क्या डालनी है, आपको बोर्ड डालना है, आप CBSE डालो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डालो, अप टू यू। आपको स्कूल का नेम डालना है, बोथ फॉर 10th 12th। स्पेशलाइजेशन में 12th में आपके पास होगी कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, वो आप डाल दीजिए। 10th में मैंने NA का रखा है बिकॉज एज सच कोई स्पेशलाइजेशन होती नहीं है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपके सर्ट मार्कशीट पे लिखा होएगा, आप उसके हिसाब से डाल दीजिए। 12th में मैंने अपेयरिंग कर रखा है तो ऑलरेडी ग्रेड आउट है। फिर यहाँ परसेंटेज, अगेन हाउ डू यू कैलकुलेट इट, बेसिस ऑफ योर बोर्ड्स रेगुलेशन। व्हेन आई से बोर्ड्स रेगुलेशन, अगर आपकी मार्कशीट के अंदर ही कुछ स्पेसिफिकली परसेंटेज लिखा हुआ है ओवरऑल या ग्रेड दे रखा है, CG पे लिखा है, तो आप वो यहाँ पर एंटर करें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ दैट आप एग्रीगेट ऑफ ऑल लेके चले। CBSE के केस में एग्रीगेट ऑफ ऑल होएगा, ICSE के केस में एग्रीगेट ऑफ ऑल होगा, महाराष्ट्र बोर्ड के केस में बेस्ट ऑफ 5 होता है क्योंकि उनकी मार्कशीट में ही लिखा होता है। सो दीज वर दी एग्जाम्पल, आप अपने बोर्ड के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। डिस्टिंक्शन इफ एनी, कोई मेरिट सर्टिफिकेट मिला था CBSE से या अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, वो चीज़ आप यहाँ डाल सकते हैं। अगेन नॉट रियली नेसेसरी, सो दैट इज देयर। आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू so that the next page opens up. I will put myself on the other side. Now here they are asking you for your achievements and extracurriculars. Again, this is a gray area. I don't think they should be asking all of these things before the interview process because anyway ये देखेंगे उन्हीं लोगों का जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, बट मांगा है तो हमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर्स विद अचीवमेंट्स और यहाँ पर एनीवे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, प्रोफेशनल एफिलिएशन। थोड़ा सा ग्रे एरिया है, थोड़ा सा ओवरलैप होएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फुटबॉल डाल रहा हूँ तो फुटबॉल में मेरे को कोई अवार्ड मिला होगा तो वो नीचे भी आ सकता है। तो दिस इज हाउ आई वुड पर्सनली बाइफर्केटेड एनी एक्टिविटी दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
जैसे फुटबॉल है, मैंने बहुत टाइम तक खेला है, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, अच्छे लेवल पे करा है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दूंगा इन द एक्स्ट्रा करिकुलर वाला पार्ट। सेम डिबेटिंग वगैरह हो गया, मतलब एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योर एकेडमिक्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपका स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल में आपने पार्ट लिया था, वो यहाँ डाल सकते हो। वॉलंटियर करा था, आप यहाँ डाल सकते हो। आपको यहाँ मेंशन कैसे करना है उसको, प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ से देखकर एक बार कॉपी कर सकते हो और अपने हिसाब से अडेप्ट करके लिख सकते हो। अब अगर अवार्ड रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन वाले सेक्शन में है, दिस इज़ व्हाट आई वुड पुट। अगर आपने कोई डिप्लोमा करा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कथक में डिप्लोमा करा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो रिवॉर्ड्स में वो आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि मुझे स्कूल की तरफ से ट्यूशन फी वेवर मिला था, तो वो चीज़ यहाँ पर आ गई। उसके बाद आपका कोई ओलंपियाड है, NTSC हो गया, KVPY हो गया, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगेन ऐसा है कि अगर आपका कोई डिबेटिंग में एक ही सर्टिफिकेट है, आप ऊपर की जगह उसे नीचे डाल सकते हो। आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग इशू। सो जो चीज़ें यहाँ रहेंगी वो तो यहाँ रहेंगी, बट जो हमने फर्स्ट वाले एक्स्ट्रा करिकुलर में डाला है उसमें भी अगर एक आधी अचीवमेंट है तो आप उसे नीचे भी पुट कर सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, बट दिस इज़ हाउ आई वुड गो अबाउट इट। कोई भी चीज़ जिसका एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैंने कुछ करा है वो मैं ऊपर डाल दूंगा, और कोई ऐसी अचीवमेंट है जो एक बार ओलंपियाड लिख दिया, एक बार स्कॉलरशिप मिल गई, वो मैं नीचे डाल दूंगा। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद आपको यहाँ IP मैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, विच इज़ गोइंग टू बी 8026 फॉलोड बाई 5 डिजिट्स, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। दैट इज़ देयर। उसके बाद आपने डालना है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो दैट वुड बी योर 10th मार्कशीट, एंड अगर आप 12th कर चुके हो तो 12th भी मांगेगा। यहाँ मार्कशीट भी मांगा है, सर्टिफिकेट भी मांगा है, विच इज़ पासिंग सर्टिफिकेट। इन द केस ऑफ ICSE एंड सम बोर्ड्स you have a separate mark sheet and separate passing certificate, so you enter both separately. If in case you are coming from a board like CBSE where there is nothing like a passing certificate, you enter your mark sheet here as well as here. Your mark sheet in a way then acts as a passing certificate. You also enter your IPMAT Indoors registration PDF over here. So that is there. आपको कोई भी एडिशनल चीज़ इन्हें बताना है तो आप यहाँ any other information you wish to highlight में डाल सकते हो, एंड अगर वो डाल दिया है then you click on save and continue. So I've clicked it over here. मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। दे हैव आस्क्ड यू फॉर योर फोटो, योर पेरेंट्स फोटो, योर सिग्नेचर, योर पेरेंट्स सिग्नेचर। जो आपका फोटो और आपके पापा का फोटो है, मेक श्योर वाइट बैकग्राउंड में हो, मेक श्योर वो 200 बाई 200 पिक्सल्स का हो। नहीं है, क्या करोगे, कैनवा में जाओगे, कस्टम साइज जाओगे, 200 बाई 200 पिक्सल का डॉक्यूमेंट बना के उसमें फोटो पेस्ट कर दोगे तो वो 200 बाई 200 पिक्सल का बन जाएगा। तो वो आपने डाल दिया। इवन सिग्नेचर पे ऑल्दो लिखा 200 बाई 200 है, बट दे आर एक्सेप्टिंग 200 बाई 80 पिक्सल्स, तो आपको वैसे ही सेम 200 बाई 80 पिक्सल्स का डॉक्यूमेंट बनाना है, एंड आपको अपना सिग्नेचर और अपने पापा का सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर देना है। आई एक्नॉलेज क्लिक करना है, प्लेस ऑफ योर रेजिडेंस डालना है, कहाँ से आप फॉर्म भरे, विच इज़ नोएडा। सेव एंड सबमिट आप क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करनी है, क्रॉस वेरीफाई करनी है। मम्मी पापा को बोलना है, दोस्त को बोलना है, भाई बहन को बोलना है कि देखो मैंने सारी डिटेल्स ठीक से भरी है नहीं, बिकॉज अननेसेसरली आप गलत भरोगे उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े, दैट डज नॉट मेक सेंस। मैंने जस्ट बिकॉज आई वॉज फिलिंग द डमी फॉर्म, तो मैंने जो फोटो थी उसी का 200 बाई 80 बना के सिग्नेचर में डाल दिया, बट आपको अपना सिग्नेचर डालना है। इमेज आपको कुछ ऐसे डालनी है, आपका अलग होगा, पेरेंट का अलग होगा, आपका अलग होगा, पेरेंट का अलग होगा। सारी चीज़ करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे 2000 रुपये मांगेगा। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, या आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं ऑफ योर चूजिंग, इट डज़ नॉट मैटर। रेजर पे जैसे करा मैंने प्रोसीड करा, उसके बाद यहाँ पर मैं पेमेंट करूँगा। ऑलरेडी मेरा नंबर यहाँ से पिक कर लिया है, ईमेल पिक कर लिया, नहीं करा है तो वही ईमेल डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला है, पेमेंट करना है। पेमेंट आते ही आपके पास पेमेंट एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। पीछे आपका फॉर्म का डैशबोर्ड भी आपका फॉर्म का डैशबोर्ड भी अपडेट हो जाएगा, एप्लीकेशन फी पेड आ जाएगा, एंड दैट इज हाउ द इंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी लाइक। आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद आवर क्रैश कोर्स वेरी सून, सो यू कैन हेड ओवर टू आवर वेबसाइट, book a counseling session and get more details about that. That's about it. If in case you have any questions, you can put it down in the comment section. I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye-bye. Thank you.